Assalamu alaikum students. Today I will discuss these topics which are role of directors, what is corporate governance and how the composition of a board affect the company's operation. First of all, move on toward the first topic which is role of board of directors. First of all, we should know what is board of directors. Board of directors is basically a group of people who jointly supervise the activities of an organization, which can be either profit or either for non-profit. For example, किसी भी बोर्ड की मीटिंग अगर बनाई जाती है तो वो इसलिए बनाई जाती है कि कंपनी की ऑपरेशंस को इवेलुएट किया जा सके और कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा सके जो हमारी कंपनी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए इफेक्टिव हैं और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें, हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें. हमारा बोर्ड शेयर होल्डर के बिहाफ पे काम कर रहा है और उसका फोकस जो होता है हमारी कंपनीज के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उन सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ एडिशनल ड्यूटीज भी होती हैं जिसमें गोल सेट करना और सपोर्ट करना और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बनाना. नाउ discuss the role of board of director. Board of director has an obligation to approve all decisions that might affect the long-term performance of the corporation. It means that उनका फोकस ऐसे डिसीजंस पे होता है जो हमारी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही होती हैं कि अगर ऑपोजिट डिसीजन ले लिया जाए तो उसका डिसएडवांटेज होगा और अगर वो डिसएडवांटेज होगा उससे क्या होगा, हमारी कॉर्पोरेशंस को लॉस होगा. बोर्ड ऑफ Directors actively engage themselves in supporting new strategy formulation, mobilizing resources, and protecting the organization from outside threats. The last one is the important step because after supporting in new strategy formulation and with the access of new resources, BOD plays an important role in protecting the organization from outside threats. Threats can be in any form like competitors. अगर हम अपनी कंपनी को थ्रेट्स की वजह से नहीं बचाएंगे, थ्रेट्स कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे और हमारे कंपनी को थ्रेट से नहीं बचाएंगे तो हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है. Next, move on toward the next topic which is role of the board in strategic management. It carries out three basic tasks. First is monitor, and the second one is evaluate and influence, and the third one is initiate and determine. In first one, a board can keep side-by-side view of developments inside and outside the corporation. इसमें बोर्ड को कॉर्पोरेशन के अंदर और बाहर दोनों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस करना होता है. In the next one, evaluate and influence, a board can examine management proposal, decisions and action. इसमें बोर्ड का फर्ज बनता है कि वो एग्जामिन करे मैनेजमेंट की प्रपोजल को, डिसीजंस को और एक्शंस को, विच कैन बी दे कैन आल्सो गिव एडवाइस एंड सजेशंस अकॉर्डिंग इट. इनिशिएट एंड डिटरमिन, अ बोर्ड कैन डिस्क्राइब अ कॉर्पोरेट्स मिशन, स्पेसिफाई स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू इट्स मैनेजमेंट. इन द लास्ट वन हम ये देखते हैं कि हमने मिशन के अकॉर्डिंग देखना है कि सब ठीक जा रहा है या नहीं. हमने ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जो हम मिशन को अचीव कर सकें. नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट हेडिंग विच इज टाइप ऑफ BODs. देयर आर टू टाइप ऑफ BODs. फर्स्ट वन इज इनसाइडर एंड द सेकेंड वन इज आउटसाइडर. Sometimes called management director or executive directors are typically officers or executive employee of the corporations. The outsiders are sometimes called non-management directors or it can also be called non-executive directors. May be executive of other firms but are not employees of the board's corporations. Our next topic is corporate governance. Corporate governance lies at the heart of this challenge. It deals with the systems, rules and process by which corporate activity is directed. Basically, corporate governance एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कंपनीज डायरेक्ट करती हैं और कंट्रोल करती हैं
और वो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली कंपनीज को डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। और इस सब को करने के लिए, गवर्न करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द effect of board composition toward company's operations. According to one research which revealed that a negative relationship between board size and firm profitability. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बोर्ड साइज और फर्म प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हम बोर्ड साइज को बढ़ाते हैं तो हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो इफेक्ट होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम बोर्ड साइज को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ये नेगेटिव रिलेशन है, क्यों है कि हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम इफेक्ट ऑफ बोर्ड कंपोजिशन देखें टुवर्ड कंपनीज ऑपरेशन, तो दो थ्योरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इज एजेंसी थ्योरी, जो कि ये कहती है कि प्रॉब्लम अराइज तब होता है because the agent which are who are likely more interested in their personal welfare than that of the shareholders. एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसका पर्सनल वेलफेयर की वजह से than that of shareholders. इसकी वजह से theory suggests that the majority of a board should be outsider. As agency theory explained that in agency theory there are two members, like first is agent and the other one is principal. एजेंट जो होता है वो हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं और हमारी जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं। और एजेंसी थ्योरी अगर हम कंपनी की बोर्ड की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो एजेंट जो है वो अपने पर्सनल वेलफेयर पे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, उसका फोकस अपने पर्सनल वेलफेयर पे ज़्यादा है देन दैट ऑफ द शेयर होल्डर, क्योंकि उसका फोकस जो है शेयर होल्डर्स के साथ होना चाहिए, बट उसका फोकस जो है, उसका इंटरेस्ट जो है अपने पर्सनल वेलफेयर पे है। इसी वजह से हमारी थ्योरी सजेस्ट करती है कि मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड शुड बी आउटसाइडर। अगर हम इनसाइडर्स ही रखेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर हम इनसाइडर्स ही रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी कॉर्पोरेशन जो है वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने ही पर्सनल वेलफेयर के लिए काम करती रहेगी। शेयर होल्डर के लिए कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, कोई शेयर होल्डर के लिए काम नहीं हो रहा होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा, जिसकी वजह से हमारी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी कम होती जाएगी और बोर्ड की कंपोजिशन जो होगी ना वो अफेक्ट करेगी हमारी कंपनी के ऑपरेशंस पे। और जब कंपनी के ऑपरेशन पे इफेक्ट करेगी तो वो जो इफेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और जब नेगेटिव होगा तो फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। एजेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग अफेक्ट जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। द नेक्स्ट थ्योरी इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। इन कॉन्ट्रास्ट ऑन एन अदर इफेक्ट दैट इज हु प्रेफर inside over outside directors, that tends that the outside directors are less effective than the inside directors, called stewardship theory. Basically effect of composition of board जो है वो इन्हीं दो थ्योरीज की वजह से हो रहा है। पहली थी एजेंट थ्योरी, अब नाउ द अदर वन इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। अब स्टीवर्डशिप थ्योरी ये कहती है कि हमें प्रेफर करना चाहिए इनसाइड डायरेक्टर्स को, विच मीन्स एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। हम अगर एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को प्रेफर करेंगे तो हमारे जो कॉर्पोरेशन जो होगी हमारी वो बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगी। और अगर हम आउटसाइड डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनको प्रेफर करेंगे, तो वो लेस इफेक्टिव होंगे देन दी इनसाइड डायरेक्टर्स। अब दोनों का कॉन्सेप्ट जो है दोनों थ्योरीज का डिफरेंट है। एजेंट थ्योरी वो डील कर रही है आउटसाइड डायरेक्टर से, और स्टीवर्ड थ्योरी जो है वो फोकस कर रही है इनसाइड डायरेक्टर्स पे ओवर आउटसाइड डायरेक्टर पे। लेट अस डिस्कस दी स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी purpose that long tenure with the inside director in corporation. Senior executives tend to identify with the corporation and its success.
स्टीवर्डशिप थ्योरी का पर्पस बेसिकली वही है कि लॉन्ग टेन्योर है विद द इनसाइड डायरेक्टर्स इन द कॉर्पोरेशन। वो कहती है कि हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी ये सीनियर एग्जेक्टिव्स जो है ना वो इंक्लूड तो होने चाहिए और उन्हीं के साथ लॉन्गर टेन्योर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी कॉर्पोरेशन जो है आइडेंटिफाई भी होगी और हमें सक्सेस भी मिलेगी। और इसी वजह से स्टीवर्डशिप थ्योरी कहती है कि हमने प्रेफर करना चाहिए इनसाइड डायरेक्टर्स को ओवर आउटसाइड डायरेक्टर्स। और अगर हम इनसाइड डायरेक्टर को करेंगे तो हमारी कॉर्पोरेशन जो होगी वो बढ़ती जाएगी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसको डेवलपमेंट होगी, उसकी ग्रोथ होगी। Now, as according to the stewardship theory, there are some examples of outside directors. Outside directors, as stewardship theory says, we should prefer the inside directors and do not prefer the outside directors. There are some reasons, because there are some examples of the outside directors that affect the corporations negatively. For example, affiliated directors, retired executive directors, and family directors. First of all, discuss the affiliative director. Affiliative director is an example of outside director which affect negatively the corporation, and it handle the legal and insurance work of the company, and कंपनी के सप्लायर्स को हैंडल करना। एफिलिएटेड डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो हमारे कंपनी के सप्लायर्स को हैंडल कर रहे होते हैं, और जब वो सप्लायर्स को हैंडल करते हैं तो सप्लायर्स और डायरेक्टर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। ऑब्वियसली अब वो डायरेक्टर्स जो है वो एफिलिएटेड है, किसी और ने उनको एफिलिएट किया है, तो हमारे जो अपने डायरेक्टर्स थे और वो डायरेक्टर जो थे जो एफिलिएटेड थे वो सप्लायर्स हैं। हमारे जो अपने डायरेक्टर्स थे और कुछ एफिलिएटेड डायरेक्टर्स थे, दोनों के दरमियान क्योंकि उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं और अपने डायरेक्टर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, वो जब उनकी स्ट्रेटजीज डिफरेंट है तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंपनी की ऑपरेशंस ऑब्वियसली अफेक्ट होंगे। The next one is retired executive director, used to work for the company, such as the past CEO who is partly responsible for much of the firm current strategy by replacement of current CEO. Retired executive director is the other example of outside director. Retired executive director में CEO current CEO को रिप्लेस कर दिया जाता है पास्ट सीईओ से, और जो वो सीईओ होता है वो 1 से 2 साल के लिए रखा जाता है, क्योंकि आउटसाइड डायरेक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब करंट की जगह पास्ट रख दिया गया, करंट स्ट्रेटजीज को पास्ट स्ट्रेटजीज के साथ रिप्लेस कर दिया गया, तो ऑब्वियसली जब पर्सन चेंज हुआ तो हमारी स्ट्रेटजीज भी चेंज होंगी, वेरी करेंगी। उस पर्सन टू पर्सन चेंज हुआ तो स्ट्रेटजीज चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी कॉर्पोरेशन पे इफेक्ट होगा और हमारी जो कॉर्पोरेशन होगी वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकेगी। द लास्ट वन इज फैमिली डायरेक्टर, द सक्सेसर ऑफ द फाउंडर एजेंडाज बेस्ड ऑन अ फैमिली रिलेशनशिप with the current CEO. It is the last example of family director. जैसे ही नेम से जाहिर हो रहा है, ये एक ऐसी डायरेक्टर्स की टाइप है जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें प्रेफरेंस जो है हमारी फैमिली रिलेशनशिप को दी जा रही है। अब फैमिली रिलेशनशिप विद दी करंट सीईओ, अब करंट सीईओ को रिप्लेस कर दिया गया है या किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेफरेंस जो है वो फैमिली रिलेशनशिप है। हम चाहते हैं कि हमारी वर्क, हमारी कॉर्पोरेशन में हमारे ही बंदे काम करें और जो पैसा है वो सारा का सारा हमारे पास आए। तो उनका इंटरेस्ट जो है वो पर्सनल हो गया और वो क्या चाहते हैं कि सारे के सारी काम जो है वो हमारे लिए हो। इसलिए क्या होगा कि फैमिली डायरेक्टर जो है वो एक तो आउटसाइड डायरेक्टर हुआ, लेकिन वो वर्क कर रहा है
किसके लिए? कंपनी की ऑपरेशंस के लिए और अपने पर्सनल वेलफेयर के लिए। इसलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी कंपोजिशन को इफेक्ट कर रहा है, हमारे ऑपरेशंस को इफेक्ट कर रहा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन जो है वो इस तरह से हमारी कंपनी की ऑपरेशंस को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारी कॉर्पोरेशंस जो है वो सही वर्क नहीं कर सकते, हमारी कॉर्पोरेशंस जो है इफेक्टिव नहीं होती। थैंक यू।